پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ آئین سازی کے وقت حکومت اپنی باتوں سے پیچھے ہٹ گئی۔ سندھ کے ساتھ بار بار تفریق اور الگ سلوک نظر آتا ہے۔ وہ جوڈیشل کمیشن سے احتجاجاً علیحدہ ہوئے۔ اگر وہ جوڈیشل کمیشن میں ہوتے تو آئینی بینچ میں فرق پر بات کرتے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ قانون سازی پر پوری طرح سے مشاورت ہونی چاہیے۔ یہ عجب ہے کہ پہلے فلور پر بل پھر انہیں کاپی دی جائے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ سیاست عزت کے لیے ہوتی ہے، سیاست میں ناراضی نہیں ہوتی۔ وفاق میں نہ عزت دی جاتی ہے نہ سیاست کی جاتی ہے۔ دنیا میں حکومت اتحادیوں کے ساتھ معاہدوں پر عمل کرتی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ معاہدے پر عمل درآمد کیا ہوا ہے۔ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ سیاست تو عزت کے لیے کیا جاتا ہے، اور معذرت کے ساتھ اس وقت وفاق میں نہ عزت دیا جاتا ہے اور نہ ہی سیاست کیا جا رہا ہے۔ وہ لیجسلیشن پہلے کابینہ سے پاس ہو، پہلے پرنٹ ہو جائے، پہلے فلور پہ آ جائے ووٹ ہونے کے لیے، اور اس کے بعد مجھے ایک کاپی دیا جائے کہ یہ ذرا پڑھے اور ووٹ ڈالے۔ ناٹ لیٹ الون ہمارا جو مسلم لیگ کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا معاہدہ ہوا، اس کا خلاف ورزی ہو رہا ہے۔ ہم نے اس اگریمنٹ میں طے کیا کہ جو چاروں صوبوں کا پی ایس ڈی پی ہے وہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ مل کے بنائیں گے، اور یہ جو منصوبہ ہے اس کا اپروول تب ہوا تھا جب میں مصروف تھا 26th امینڈمنٹ کا جدوجہد کر رہا تھا۔ پیٹھ پیچھے اس کو اپروول دیا گیا، وہ بھی میرے پارٹی کے ممبران کے ساتھ آن دا ریکارڈ اعتراضات کے باوجود۔ جس طریقے سے حکومت آگے بڑھ رہے ہیں وہ تو اس پہ کنسنسس ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ہماری حکومت کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہائیبرڈ ماڈل ہے، تو ہمارے لیے پیپلز پارٹی کا تعاون بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ خواجہ آصف کی جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کہا کہ بلاول بھٹو نے جو اعتراضات کیے ہیں وہ درست بھی ہیں۔ ہماری پارٹی قیادت اور حکومت کو وہ اعتراضات درست کرنے چاہیے۔ اگر صورتحال ویسی ہی ہے جیسے بلاول نے بتائی ہے تو اس کی فائن ٹیوننگ کرنی چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب ناراض ہیں، تنقید کر رہے ہیں حکومت پر، ناراضی نظر آ رہی ہے ان کی۔ بلاول صاحب نے جو اعتراضات کیے ہیں وہ صحیح بھی ہیں، اور ہماری پارٹی کو، حکومت کو، لیڈرشپ کو جو ہے ان اعتراضات کو جو ہے دور کرنا چاہیے۔ اگر ہمارا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہائیبرڈ ماڈل ہے تو پیپلز پارٹی کا اتنا ہی ضروری ہے تعاون پاکستان کی ترقی کے لیے جتنا اس ہائیبرڈ۔ تو پھر وہ ناراض اس لیے ہوئے کہ اس ہائیبرڈ ماڈل میں جس نے اس ہائیبرڈ ماڈل کو برقرار رکھا ہوا ہے آپ ان پہ زیادہ ریلائی کر رہے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کو بھی سنبھال کے رکھیں۔ اگر یہ سچویشن ہے تو اس سچویشن کو کریکٹ کرنا چاہیے، ہم اس کی فائن ٹیوننگ کرنی چاہیے۔ ہم کس طرح ہینڈل کریں گے؟ پنجاب، خیبر پختونخوا سے مینلی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے احتجاج کو لیڈ کریں گے، مذاکرات تو وہ پھر ایک دفعہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہینڈلر سے ہی کریں گے۔ جو احتجاج وغیرہ کریں گے وہ ایک ڈسرپٹیو ایفیکٹ ان کا ضرور ہوگا، لیکن اٹ از نو مور اے پولیٹیکل تھریٹ۔ یہ جو اس وقت ایک ہائیبرڈ سیمپل ہائیبرڈ ایک ارینجمنٹ جاری ہے، وی آر ناٹ آن دا سیم پیج فار آور اون انٹرسٹ۔ ایک پیج کے اوپر آ کے تو ہم جو ہے کسی نہ کسی طرح پاکستان کو جو ہے اس دلدل سے نکال لیں۔ انٹرسٹنگ بات ہے کہ عمران خان صاحب کا ہائیبرڈ تھا مگر انہیں برا لگتا تھا اگر کوئی بولے، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہائیبرڈ ہی ہے۔ ایک حقیقت ہے، اس سے انکار کرنا وہ تو جلد سازی ہے نا۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا۔ کارروائی کے نتیجے میں 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گرد بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ میجر محمد حسیب کی قیادت میں سیکیورٹی فورسز کو فوری طور پر بھیجا گیا۔ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کے قریب دیسی ساختہ بم پھٹ گیا۔ بم دھماکے کے نتیجے میں 28 سال کے میجر محمد حسیب شہید ہو گئے۔ آپریشن کے دوران 38 سال کے حوالدار نور احمد بھی بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ہرنائی میں شہید جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر مملکت نے ایک بیان میں کہا کہ قوم شہداء اور ان کے خاندانوں کی قربانیوں کو فراموش نہیں کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی لازوال قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی نے پی ٹی آئی کے ارکان پنجاب اسمبلی کو آج پشاور طلب کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق بشرا بی بی ارکان پنجاب اسمبلی سے ملاقات میں 24 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے مشاورت کریں گی اور بانی پی ٹی آئی کا اہم پیغام بھی ارکان اسمبلی تک پہنچائیں گی۔
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि बुशरा बीबी की पार्टी की सीनियर लीडरशिप के साथ मुलाकातें ज़रूर हुई हैं, मगर उन्होंने किसी इजलास की सदारत नहीं की। 24 नवंबर के एहतजाज में बुशरा बीबी का ताउन दुआओं की हद तक होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि PTI मोहसिन नकवी से किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं करेगी। अगर एहतजाज से पहले कोई हमसे रब्ता करेगा तो हम उस पर सोचेंगे। अगर बानी PTI को कबूल होगा तो मुज़ाकरात किए जाएंगे, वरना एहतजाज करेंगे। मैं तो इस खबर को दुरुस्त नहीं कहूँ। बुशरा बीबी ने तो किसी इजलास की सदारत नहीं की। एक आध लोगों से जो हमारे पार्टी के सीनियर लीडरशिप है उनके साथ मुलाकातें जरूर हुई हैं उनकी। जो 24 नवंबर को एहतजाज होने जा रहा है, क्या उसमें उनका इनपुट शामिल होगा? उनका इनपुट मेरी राय में तो दुआओं की हद तक जरूर होगा। ये फैसला इमरान खान साहब की का है, उनकी तरफ से ये तारीख आई है। अगर पार्टी के किसी रहनुमा को या किसी वर्कर को या किसी भी अहम शख्सियत को इस तारीख के हवाले से कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो हो सकते हैं। रिजर्वेशन अगर किसी की हैं तो वो अपनी जगह पे है, लेकिन पार्टी का इज्तिमाई फैसला जो है वो अब सबका फैसला है। इतने सारे अवाम आपको लगता है कि निकल आएंगे कि हुकूमत पर कोई दबाव पड़ जाए और आपके मुतालबात मान लिए जाए? जरूरी नहीं है कि हर एहतजाज से आपको 100% नताइज हासिल हो। कहा गया कि मुज़ाकरात हैंडलर से हो, तो अगर उन्होंने मोहसिन नकवी को भेज दिया मुज़ाकरात के लिए तो फिर उनसे करेंगे? उनके साथ हम कोई बात नहीं करेंगे, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो सर्विंग जर्नल से मुज़ाकरात करने हैं या मोहसिन नकवी साहब को अगर नॉमिनेट किया गया तो कर लेंगे? ये जो है ना थोड़ी सी कबल अज़ वक्त बात है। पहले तो हम अब एहतजाज कर रहे हैं, अब हमारे साथ कोई राब्ता करेगा और हमसे कोई बात करेगा तो फिर हम उस पर कंसिडर करेंगे। इस टारगेट से पहले अगर कोई इंटरेक्शन होता है उसके बाद पार्टी सोचेगी, खान साहब से मशवरा होगा, उनके अहकाम की रोशनी में हम बात करेंगे। अगर उनको कबूल होगा मुज़ाकरात करेंगे, नहीं होगा तो हम आएंगे और एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक उमर अयूब का पैगाम मिलने के बावजूद बानी PTI ने एहतजाज की तारीख दे दी। ज़राए का कहना है कि उमर अयूब और PTI के सरकर्दा रहनुमा फौरी एहतजाज के मुखालिफ थे। ज़राए के मुताबिक PTI के रहनुमा चाहते थे कि तैयारी के बाद एहतजाज की तारीख का ऐलान किया जाए। उमर अयूब और दूसरे रहनुमा बानी PTI से मिलकर उन्हें कायल करना चाहते थे। उमर अयूब और दूसरे रहनुमाओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और बानी PTI की उनसे मुलाकात ना हो सकी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात ना होने पर उमर अयूब का पैगाम बानी PTI को पहुंचाया गया, लेकिन वो ना माने। ज़राए का कहना है कि नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप के हवाले से बानी PTI उम्मीद करते हैं कि वो न्यूट्रल रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि PTI का काम ही एहतजाज करना है, गलत काम करेंगे तो गिरफ्तारी होगी। गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम ने कहा था कि सर्वे करा लिए हैं, फितना और इंतशार तहरीक नीचे और नून लीग ऊपर जा रही है। लंदन में पार्टी कारकुनों से बातचीत में कहा कि स्मॉग 7-8 साल से है, इसके खात्मे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। भट्टे के काले धुएँ और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को पकड़ रहे हैं। मुंजी जलाने वाले किसानों को रोकने के लिए तरगीबात दे रहे हैं। लाहौर वस्त अक्टूबर से स्मॉग की लपेट में है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज भी 1500 से तजावुज़ कर गया। शहरियों का सांस लेना महाल हो चुका है। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात सिर्फ नोटिफिकेशंस की हद तक महदूद है। स्मॉग के कंट्रोल में कोई कामयाबी नहीं मिल रही। लाहौर से उम्मे फरवा रिपोर्ट कर रही हैं। लाहौर में कई हफ्तों से स्मोक की बदतरीन सूरत हाल बरकरार है। साबका सालों के तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं। शहर में बाज़-औक़ात एयर क्वालिटी इंडेक्स 3000 के करीब पहुंच जाता है। स्कूल, कॉलेज और एकेडमीज बंद हैं। मार्केटें 8 बजे बंद कराई जा रही हैं। बारबेक्यू पर भी पाबंदी है, मगर इन इक़दाम से भी स्मोक पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। शहर में कई मकामात पर सरकारी तामीरात का सिलसिला जारी है। सरकारी मुलाजमीन SOPs पर अमल नहीं कर रहे। शहरी भी संजीदा नजर नहीं आते। दूसरी जानिब स्मोक से मुतासरा मरीजों से हस्पताल भर गए हैं। महकमा सेहत पंजाब के डाटा के मुताबिक लाहौर में अक्टूबर से अब तक सांस की मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला 1,31,368 मरीज लाए गए। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि शहरी मास्क लगाएं और बिला जरूरत घरों से ना निकलें। चूँकि हवा में होती है और हवा जो है वो आप उसको एक्सपोज होते हैं, आपने सांस लेना होता है, आपकी आंखें हवा को एक्सपोज होती हैं, आपका नाक, कान, गला आंखों को एक्सपोज होता है, जैसे हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं। इसके बाद सांस लेने के लिए हवा फेफड़े में जाती है, तो फेफड़ा भी सांस की बीमारियों में इसमें एक्सपोज हो जाता है। फौरी जो करने वाला काम है हम सब के लिए वो ये है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा घर से बाहर ना निकलें। जब तक हमें कोई ख़ास मजबूरी नहीं है हम घर से बाहर मत निकलें। अगर हमें घर से बाहर निकलना पड़ता है तो जो चीज़ें एक्सपोज है, जिसमें नाक, कान, गला है, फेफड़ा है,
उसके लिए मास्क का इस्तेमाल करें, आंखों के लिए ऐनक का इस्तेमाल करें। माहिर माहौलियात का कहना है कि बारिशों का ना होना और फसलों की बाकियात को आग लगाना स्मोक का सबब है। जिन इलाकों में ज्यादा गाड़ियाँ चलती हैं वहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ जाता है। जब बारिश नहीं होता तो क्रॉप बर्निंग हम ये कहते हैं ना कि अगर ख़त्म हो गई है, लेकिन हुई बहुत ज़्यादा। अगर आप गांव में जाके तस्वीरें देखें, जो क्रॉप जगह देखें, तो वहाँ पे क्रॉप बर्निंग बहुत ज़्यादा हुई है और ये धुआं जो है उसका वो उधर ही रहता है, वो जब तक बारिश नहीं होता वो सेटल डाउन नहीं होता। लाहौर की ज़िला इंतजामिया ने आउटडोर डाइनिंग पर 75 दुकानें, एक शादी हॉल और 14 रेस्टोरेंट सील कर दिए। प्रोग्राम कैपिटल टॉक के लिए कैमरामैन मोहम्मद रेहान और जवाद हैदर के साथ उमे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से बाराने रहमत के लिए नमाज इस्तिस्का अदा करने की अपील कर दी है। एक बयान में कहा कि उलमा कराम और मशाइख अज़ाम नमाज इस्तिस्का के एहतमाम में किरदार अदा करें। बारिश से माहौल बेहतर होगा, बीमारियों से निजात में बड़ी मदद मिल सकती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वफाक और सूबों के ज़ेर एहतमाम तमाम मसाजिद में नमाज इस्तिस्का का एहतमाम किया जाए। मौजूदा सूरत हाल में बाराने रहमत की शिद्दत से ज़रूरत है। महकमा औकाफ पंजाब के ज़ेर एहतमाम मसाजिद में इज्तिमाई तौबा, इस्तग़फ़ार और बाराने रहमत के लिए नमाज इस्तिस्का अदा की गई। कल नमाज जुमा के बाद भी सूबे भर की जामे मसाजिद में नमाज इस्तिस्का अदा की जाएगी। सेक्रेटरी औकाफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी का इस हवाले से ये कहना है कि आलमी मौसमियाती तब्दीलियों से पूरा खित्ता शदीद मुतासर हुआ है। स्मॉग से जान छुड़ाने और बाराने रहमत के लिए लाहौर की जामे मस्जिद चिराग समेत दीगर मसाजिद में नमाज इस्तिस्का अदा की गई। इस मौके पर तौबा इस्तग़फ़ार के साथ रब ताला से दुआ की गई कि वो ज़ात बारी ताला हमारे गुनाह माफ़ फरमाए और हमारे बच्चों, बुजुर्गों और ख़वातीन को सांस, गले और दीगर अमराज से शिफा अता फरमाए। सियालकोट की तहसील डस्का में घरेलू नाचाकी पर ससुरालियों की जानिब से बहू को कत्ल करने के केस में तफ्तीश के दौरान अहम इंकशाफात सामने आए हैं। तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना अंसर हमारे साथ मौजूद हैं। अंसर, इस वाक़े से मुतालिक पुलिस ने क्या तफ्तीश की है और कौन से हक़ाइक़ सामने आए हैं? हाँ जी, देखें, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है जिसकी इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं और मामला कुछ ऐसे है कि ये जो मकतूला ज़ारा है ये गुजरांवाला के रहायशी एक पुलिस ASI शबीर अहमद की बेटी है, जिसकी शादी 4 साल कबल उसके खालाजाद कदीर से हुई थी, जो सियालकोट डस्का के इलाका कोटली मुरला का रहायशी है। सऊदी अरब में मुकीम कदीर ज़ारा को शादी के बाद अपने साथ ले गया। ज़ारा पाकिस्तान भी आती जाती थी और 2.5 साल कबल ज़ारा के यहाँ एक बेटे शाफिया की पैदाइश हुई। शादी के बाद कदीर सारे पैसे अपनी बीवी के अकाउंट में भिजवाने लगा तो सास और बहू में झगड़े शुरू हो गए। सुगरा बीबी जो सास है मकतूला की, उसने पहले बहू के किरदार पर इल्जामात लगाकर तलाक दिलवाने की कोशिश की और नाकामी पर अपनी बेटी यास्मीन को साथ मिलाकर उसे कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। 1.5 माह पहले ज़ारा पाकिस्तान वापस आई तो मंसूबे पर अमल दरामद के लिए माँ बेटी ने लाहौर के रहायशी अपने एक रिश्तेदार नौजवान नवीद को साथ मिलाया। नवीद बेरोजगार था। डील में ये तय हुआ कि काम हो जाने पर नवीद को यास्मीन अपने शोहर के पास इटली भिजवा देगी। नवीद लाहौर से कोटली मुरला आया। वकुआ के रोज जो ज़ारा है पहले तकिया रख के उसको कत्ल किया गया और फिर उसकी लाश के टुकड़े कर दिए गए। शनाख्त मस्क करने के लिए चेहरे को जला दिया गया और 5 मुख्तलिफ बैग्स में लाश के टुकड़े जो हैं वो पैक कर दिए गए, जिसके बाद नवीद यहाँ से वापस लाहौर चला गया। अब यास्मीन ने अपने बेटे अब्दुल्ला को अपनी वालदा के घर बुलाया ताकि उसकी मदद से लाश को ठिकाने लगाया जा सके और फिर बोरियां करीबी नाले में फेंक दी। इसी दौरान जो मकतूला ज़ारा है इसका वालिद अपनी बेटी को फोन कॉल कर रहा था और उसका फोन मुसलसल बंद मिल रहा था, जिस पर वो उसके ससुराल पहुंच गया। जब वो वहां पहुंचा तो मकतूला की सास ने बताया कि ज़ारा बगैर किसी को बताए सुबह सवेरे घर छोड़कर चली गई है। ज़ारा का बेटा जो 2.5 साल का है वो वहां रो रहा था और पूरा घर का जो फर्श है वो पानी से धुला हुआ था, जिसे देखकर उसके वालिद को शुबा हुआ तो उसने पुलिस को इत्तला दे दी। पुलिस ने यास्मीन के बेटे अब्दुल्ला को जब हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने सारा सच उगल दिया। पुलिस ने उसके बाद जाए वकुआ से लाश को बरामद किया। अब्दुल्ला की जो वालदा यास्मीन है जो मकतूला की नंद है उसको और उसकी सास सुगरा को गिरफ्तार किया और जो नवीद जो किरदार बाद में सामने आया उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का ये कहना है कि मुल्जमान ने दौरान तफ्तीश अपने जुर्म का एतराफ कर लिया है। आला कत्ल भी बरामद किया गया है और मकतूला के जेरे इस्तेमाल जो मोबाइल फोन थे, 2 मोबाइल फोन थे, वो भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। इस सारे वाक़े की तहकीकात अभी मजीद जारी हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए राना अंसर।
खबर देंगे आपको बाजोड़ से, जहां नामालूम अफराद की फायरिंग से जमात इस्लामी बाजोड़ के सेक्रेटरी जनरल सूफी हमीद जम बहक हो गए। मुलजमान वारदात के बाद फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस के मुताबिक बाजोड़ के इलाके इनायत किला में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके जमात इस्लामी बाजोड़ के सेक्रेटरी जनरल और सदर ऑल ताजर बरादरी सूफी हमीद को शदीद जख्मी कर दिया, जिन्हें फौरी तौर पर हेडक्वार्टर अस्पताल खार ले जाया गया। ताहम वो जख्मों की ताब न लाते हुए रास्ते में जम बहक हो गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का कहना है कि CCTV फुटेज की मदद से मुल्ज़मान की तलाश जारी है। और अभी आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी ने कराची में बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन भी जीत लिए हैं। कराची में पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन की 4 नशिस्तों से 3 नशिस्तें जीत ली हैं। एक चेयरमैन की नशिस्त के नताइज आना अभी बाकी हैं। सदर टाउन UC 13 का बड़ा मुकाबला पीपल्स पार्टी के करमुल्ला वकासी ने बड़े मार्जिन से जीत लिया। उन्होंने 3616 वोट लेकर चेयरमैन मुंतखब हो गए। उनके मुकाबले में जमात इस्लामी के नूरुल इस्लाम 779 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार बाबर खान सिर्फ 678 वोट हासिल कर सके। वाइस चेयरमैन की 2 नशिस्तों में से एक पर पीपल्स पार्टी और एक पर जमात इस्लामी कामयाब हुई। कराची से जनरल वार्ड की 4 में से 3 नशिस्तों पर भी पीपल्स पार्टी कामयाब हुई। जनरल वार्ड की एक नशिस्त के नताइज आना भी बाकी हैं। कोरंगी क्रीक वार्ड 4 में काउंसलर की नशिस्त पीपल्स पार्टी के समीर अब्बासी ने जीत ली। जिला कोरंगी UC 7 पर चेयरमैन की नशिस्त का नतीजा अभी तक जारी नहीं किया गया। और अफसोसनाक खबर मियाँ वाली से, जहां के इलाके मूसा खेल में बाप ने बेटी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक बेटी तलाक याफ्ता और वालिद के घर में रिहाइश पजीर थी। पुलिस ने मफरूर बाप की तलाश शुरू कर दी है। इब्तदाई तहकीक के मुताबिक बाप ने घरेलू रंजिश पर बेटी को कत्ल किया। बरतानिया के नामवर अखबार दी गार्जियन ने ऐलान किया है कि वो अब से सोशल मीडिया साइट X पर अपना इदारती मवाद पोस्ट नहीं करेगा। ताहम लोग X या ट्विटर पर गार्जियन के मज़ामीन शेयर कर सकेंगे। अखबार के मुताबिक लाइव न्यूज़ रिपोर्टिंग की नौयत ऐसी है कि गार्जियन भी रफ्ता रफ्ता X के कंटेंट लिंक्स अपने सफ़ात में पोस्ट करता रहेगा। द गार्जियन का कहना है कि ट्विटर पर पोस्ट करने के मनफी असरात उसके फ़वाइद से ज़्यादा हो गए हैं। सहाफ़त के फ़रोग़ के लिए हमारे वसाइल दूसरी जगहों पर बेहतर इस्तेमाल हो सकते हैं। अमरीकी सदारती मुहिम ने हमारे खदशात दुरुस्त साबित कर दिए कि ट्विटर एक आलूदा मीडिया प्लेटफॉर्म बन चुका है और ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने इस प्लेटफॉर्म को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया।